Hello. Yes, a very good afternoon to all of you. Am I audible? Yes, sir. Yes, So, Okay. So the topic that we will start today is that we completed the unit third. Okay. Now we will start the remaining part of unit two. Today is 18th Feb. Okay. So in this unit, basically this unit was divided into uh, two parts. It was named as algebraic linear system and interpolation. Algebraic linear system and interpolation. So interpolation part we have already done. The other part is algebraic linear system of equation. So here the systems means you have more than one equation. System of equations are, suppose you have x plus y plus z is equal to 2, x minus y plus 2z is equal to 3, and x 2x plus y minus 3z is equal to 5. You have these three equations, okay, and you need to find out the solution of this system of equations. So here all these equations are linear. Linear means the degree of each variable is 1, and system of equation means it has more than one equation, and these are the algebraic equations. So this is called the algebraic system of equation. We need to learn the methods to find out the solution of these type of system of equations. Okay. So in your syllabus, basically two type of methods are there. First one is the direct method, and other is iterative method. Okay. Direct method and iterative method. So this is x plus y plus z is equal to 2. This is the example of a linear system of equations. So two type of methods we have to do in this part. First one is the direct method and another is the iterative method. What is the difference between these two methods that you should know? Direct method, you have been doing these methods right from the school level. जैसे अगर आपसे कहा जाए एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालिए, सिंस ऑल ऑफ यू हैव मैथमेटिक्स इन योर ट्वेल्थ लेवल, okay, so you must have solved these equation by matrix method. You might have done with the help of the determinant method. You might have seen the elementary row operations and all these. And last but not the least, the method that we used to do in the school level is we eliminate one variable z from two equations with the help of third one. Then we left with two equation, two variable. We find out the values of x and y, and then put those values in any of the equation to get the value of z. So these are the methods. These are called the direct method, जहाँ से आप डायरेक्टली इनको कर सकते हैं. ओके. तो आपको बेसिकली दोनों ही मेथड्स करने हैं. डायरेक्ट मेथड में आपको करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड. This is one of the direct method, and another other direct method is Gauss-Jordan method. Okay, Gauss elimination method and Gauss-Jordan method. Okay. In the iterative method, you have to do the Jacobi method.
Jacobi method, and another one is Gauss-Seidel method. Okay, so this is the important part of your syllabus. The two questions are very likely to come from that two parts. Most of the time, one part will certainly be there. Most of the times it should be from iterative method, but sometimes they ask the question from the direct method as well. So this is the difference between direct method. I have already told you. In the iterative method, the way we have seen in the differential equations, okay, when we learn the Euler method, modified Euler method, what we used to do over there, we get a recursive relation, okay, and we have some initial condition, and we used to perform some iterations, मतलब कुछ steps हम perform करते थे 3 बार 4 बार 5 बार depending on the value of x. So the iterative method basically are of that type कि इन equations में हम लोग iterative method कैसे use करेंगे. Okay, so I will start with the iterative methods. Okay, तो iterative methods में क्या होता है basically, सबसे पहले हम देखेंगे Gauss-Jacobi iterative method. Gauss-Jacobi iterative method. Okay, in the Gauss-Jacobi iterative method, suppose consider a system of equations. System of equations a11 x1 a12 x2 a1 n a1n xn, this is b1, a21 x1 a22 x2 b2 am1 x1 am2 x2 amn xn bn. ये जो है बेसिकली m इक्वेशंस हैं और ये n वेरिएबल्स में आपको m इक्वेशंस दी हुई हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो पेपर में आएंगे वो 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी, मतलब 3 इक्वेशंस होंगी, तो m और n मोस्ट ऑफ द टाइम 3 होगा, बट ये थोड़ा इसे जनरलाइज करके लिख रहा हूं मैं. द अबाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन can also be written as, यहाँ पे हमने क्या करा, x1 वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 अपॉन a11, ओके, एंड दैट इज a11 x1 a12 sorry, a12 x2 a13 x3 a1n xn माइनस b1. मैंने क्या करा, जो ये वाली इक्वेशन थी आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन, इसमें क्या करा, इस x1 को तो लेफ्ट साइड में रखा और बाकी सारी टर्म्स को क्या करा, मैं राइट साइड में ले गया. तो ये हो जाएगा b1 माइनस a12 x2 माइनस a13 x3 माइनस a1 xn और a11 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो ये यहाँ पे हमने करा है. इसी तरह
x2 क्या हो जाएगा, x2 आ जाएगा -1/a22, ओके, एंड दैट इज x2 will be a21 x1 plus a23 x3 एंड लास्ट में आ जाएगा a2n xn माइनस b2, ओके। इसी तरह xn क्या आ जाएगा, xn will be minus a mn xn will be minus amn, और ये आ जाएगा am1 x1 am2 x2 am n minus 1 x n minus 1 minus bn। इन इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब इन इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, रिकर्सिव रिलेशन बनाऊंगा। रिकर्सिव रिलेशन मतलब कि जैसे आपने वहां पे देखा था yn+1 इज इक्वल टू yn समथिंग, जो भी हमने करा था, ओके। तो यहाँ भी हम उसी तरह से रिकर्सिव रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन मैं यहाँ पर अभी मेंशन करता हूँ क्या होगा। पहले तो आप इस तरह लिख लेंगे। तो ये जो है आपका लेफ्ट साइड में k+1 k+1 k+1, ओके, और राइट साइड में सारे में k आ जाएगा। ये पावर मैंने दूसरे कलर से ली है हाईलाइट करने के लिए। तो k+1th वैल्यू जो होगी सारे वेरिएबल्स की, वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड में तो k+1 आ जाएगा और राइट साइड में जो है आपका k आ जाएगा, ओके। तो इसको क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मे बी अभी आपको ज़्यादा क्लियर ना हुआ हो, बट एक बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। तो लेट्स सी वन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन इज, यहाँ से लिखते हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय जैकोबी मेथड। इक्वेशंस है आपके पास 4x1 4x1 प्लस x2 प्लस x3, या फिर इसको रहने दीजिए। क्वेश्चन इज 20x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 20y माइनस z इज इक्वल टू -18। 2x माइनस 3y प्लस 20z is equal to 25. Take initial approximation
as 0, 0, 0 and perform 2 iterations. Okay. So the question is, solve the system of equation by Jacobi method and take the initial approximation as 0, 0, 0 and perform 2 iteration. तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं बाय गॉस जैकोबी मेथड. The iterative formula is iterative formula क्या आ जाएगा, x to the power k plus 1 is equal to minus 1 upon 20 y minus 2z k plus 70, sorry, minus 70. Okay, y k plus 1 is equal to minus 1 upon 20 3x k minus z k, and it is plus 18, and z k plus 1 is equal to minus 1 upon 20 2x k plus, sorry, minus 3y k, and it is minus 25. तो ये आपका इटरेटिव फॉर्मूला आ गया. और k आपका क्या हो जाएगा, k कैन बी 0, 1, 2, 3 and so on. x0, y0, z0, ये आपको क्या दिया हुआ है, 0, 0, 0 गिवन. ओके, सो फर्स्ट इटरेशन क्या हो जाएगा, सर ये हम फर्स्ट इक्वेशन से y और सेकंड इक्वेशन से x ऐसे नहीं कर सकते? नहीं नहीं, यही इसका तरीका है, यही मेथड. आपको फर्स्ट इक्वेशन से x लेना है, सेकंड से y लेना है और थर्ड से z लेना है. ओके, ओके सर. तो इसी को ही फॉलो करना है आपको, क्योंकि ये मेथड आपको एज इट इज ही याद रखना है. ओके, तो फर्स्ट k इज इक्वल टू 1 आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 विल बी minus 1 by 20 y0 minus 2z0 minus 17, वैल्यूज डालोगे तो ये आ जाएगा 0 minus 0 minus 17, 17 by 20. ओके, 17 by 20 ये आ जाएगा आपका 0.85. ओके, क्लियर है. k को 1 डाला मैंने, अब सेकंड इक्वेशन में, सॉरी, k को 0 डाला तो y1 क्या आ जाएगा, दैट विल बी, y1 will be, just a minute, yes, y1 will be minus 1 by 20 3x0 minus z0 plus 18. So that will be 18 minus 18 by 20. तो ये आ जाएगा minus 0.9. और z1 क्या आ जाएगा, हाँ जी, सर आपने स्टार्टिंग में k plus 1 लिया था, तो जो आपने x1 लिया है वो x2 होना चाहिए ना. सॉरी, यहाँ पे k0 लेंगे हम, यू आर राइट, k0 लेंगे. ओके, अब ठीक है. यस सर. 2x0 minus 3y
0 plus, sorry, minus 25. So this will be 25 by 20, that is 1.25. तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बाद, फर्स्ट इटरेशन के बाद अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, x1, y1 एंड z1, ये आ जाएगा आपके पास 0.85 माइनस 0.9 एंड 1.25. ओके, तो इस तरह से आप इटरेशन परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है सेकंड इटरेशन. सेकंड इटरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी टेक k as 2, सेकंड सॉरी k as 1. सेकंड इटरेशन के लिए हमने ले लिया टेक k as 1. तो क्या आ जाएगा, x2 विल बी, x2 क्या आएगा, दैट विल बी माइनस 1/20 और वही 2 एक्सटर्नेट, ये आ जाएगा, हाँ, y to the power 1 माइनस 2z1 माइनस 17. ओके, ये आपका x2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे. ये आएगा माइनस 1/20. y1 आपके पास क्या है, माइनस 0.9 माइनस 2 1.25 माइनस 17. ये बताइए क्या आ रही है वैल्यू. यस, कैलकुलेट करके बताइए जल्दी. सर सर माइनस सर 1.02. 1.02. यस, माइनस दैट्स करेक्ट. 1.02. 1.02. y2 की वैल्यू बताइए क्या आ रही है, दैट विल बी 3x1 माइनस z1 प्लस 18. तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1/20. x1 is 0.85. सर आ रही है 0.965 माइनस 0.965. माइनस आ रहा है ना, माइनस, दैट कम्स एज माइनस 0.965. और z2 बताइए क्या आ रहा है, z2. सर y1 की वैल्यू क्या है, 0.9.
हाँ जी, y1 की वैल्यू -0.9, z2 क्या है? सर इसमें कुछ ऐसा भी है कि जो फर्स्ट का कोफिशिएंट होना चाहिए वो दो और से वो कोफिशिएंट से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कोफिशिएंट का मतलब क्या कह रहे हैं हम? जो फर्स्ट का कोफिशिएंट होना चाहिए वो तब सर जो एक्स का कोफिशिएंट हो वो जो वाई जेड है उनके सम से कोफिशिएंट से ज्यादा हो, ऐसा कुछ है क्या इसमें? नहीं नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, वो अलग कंसेप्ट है कि वो डायरेक्ट मेथड्स में होता है। तो वो आ वो रही है डोमिनेंस 1.03। 1.03, इसमें तो आपको डायरेक्टली यही मेथड यूज कर देना है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1.02 -0.965 एंड 1.03। ओके, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को माइनस में आ रही है। z की वैल्यू प्लस ही आएगी 1.03। सब प्लस ही आ रही है। हाँ ये तो बाहर माइनस लगा हुआ है ना भाई, अंदर -25 है और ये सारे जो हैं -20। ठीक है, तो बाहर माइनस के कारण प्लस हो जाएगी। So it's very simple question. The only thing is that you have to do some calculation in a very formal manner. बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय जैकोबी मेथड। 3 इक्वेशन दी होंगी, उससे आप क्या कर लेंगे, इटरेटिव फॉर्मूला बना लेंगे और इटरेटिव फॉर्मूला बना के फिर आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दिया होगा और जितने भी इटरेशंस आपको कहीं है करने के लिए एग्जाम में, ज्यादा से ज्यादा 3 इटरेशंस आपको करनी होंगी, 3 से ज्यादा नहीं आएंगी। ओके, तो k की वैल्यू 0 1 2 उसके अकॉर्डिंगली हम लेते रहेंगे। ओके, तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू ऑब्टेन द रिकर्सिव फॉर्मूला फर्स्ट। रिकर्सिव फॉर्मूला आपने बना लिया तो उसके बाद आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते। इसी तरह ये पूछना है किसी को कुछ इसमें? यस, नो सर। solve the system of equation. This is 4x1 plus x2 plus x3 is equal to 2. Then x1 plus 5x2 plus 2x3 is equal to -6. x1 plus 2x2 plus 3x3 is equal to -4. Use Jacobi method. Take initial approximation as as 0.5 -0.5 -0.5 perform 3 iteration। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड द वेरिएबल्स आर गिवन एज x1 x2 एंड x3। तो फर्स्ट स्टेप में ही आपको इटरेटिव फॉर्मूला बना लेना है बाय जैकोबी मेथड। द iterative formula is
क्या आ जाएगा इटरेटिव फॉर्मूला? ये होगा आपका x1 k प्लस 1। ये जो आप न्यूमरेट इसको लिखेंगे k प्लस 1, ये ब्रैकेट में लिखिएगा, क्योंकि अगर सपोज जैसे यहाँ पे देखेंगे ये जो है मैंने सारा ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अगर मैं ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रीड होगा। तो मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। नोटेशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए। इनको आपको जो है ना, ये टू है, ये टू है, ये टू है, इनको जैसे यहाँ पर ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, इनको आपको ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना है। इसका रीजन क्लियर है, क्योंकि वो फिर एक्स स्क्वायर या x1 x2 इस तरह से उसे कंसिडर करा जाएगा। तो x1 k प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका? -1/4 x2 k प्लस x3 k -2। ओके, इसी तरह से x2 k प्लस 1 क्या आ जाएगा? दैट विल बी -1/5 x1 k and 2 x3 k, and it is plus 6. And third one is x3 k plus 1 is -1/3 x1 k plus 2 x2 k, and it is plus 4. ओके, k जो है आप क्या लेंगे? 0 1 2 0 1 2, तीन ही लेने हैं आपको। वैसे तो ये कितना भी हो सकता है, बट यहाँ पे तीन इटरेशंस दी हैं तो 0 1 2 ले लेना है। x1 0, x2 0, x3 0 आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आई होप ये आप कर लेंगे। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। ओके, अदरवाइज सर हो जाएगा, कैलकुलेशंस। हाँ जी, सर हो यस, जाएगा ये। हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो आएगी इसकी, x2 1 x3 1, ये होगा 0.75 -1.1 एंड -1.1367। सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो होगा या सेकंड इटरेशन होगा x1 2 x2 2 x3 2, ये आ जाएगा 1.0667 -0.8833 and -0.85। ओके, एंड थर्ड इटरेशन जो है वो हो जाएगा x1 3 x2 3 x3 3। its value will be 0.9333 minus 1.0733 and minus 1.1300। ओके, तो ये जो है क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। बिल्कुल इसी तरह से चीजें होंगी और हर इटरेशन में आप इसका आंसर चेक कर सकते। ओके, नेक्स्ट आता है आपका गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल, ये जो है आपका आंसर है गॉस सीडल इटरेटिव मेथड। गॉस सीडल इटरेटिव मेथड, इसमें मैं जो है सीधा ही क्योंकि तीन इक्वेशंस के लिए लिखना है, तो मैं तीन इक्वेशंस ही ले रहा हूँ और उसी का ही मैं जो है अप्रोक्सीमेट जो है इटरेटिव फॉर्मूला लिख देता हूँ। ओके,
consider a11 x1, a12 x2, a13 x3 is equal to b1, a21 x1, a22 x2, a23 x3 is equal to b2, a31 x1, a32 x2, a33 x3 is equal to b3. The iterative formula is x1 k plus 1 is minus 1 upon a11 and it is a12 x2 k, a13 x3 k minus b1. Okay, x2 k plus 1 is minus 1 upon a22 a21 x1 k plus 1 plus a23 x3 k minus b2. Okay, and third one is x3 k plus 1 is minus 1 upon a33 and that is a31 x1 k plus 1 a32 x2 k plus 1 and minus b3. Okay, clear है? So I hope you understand the difference between the iterative formulas. एक बार इसको ध्यान से देखिए, उसमें क्या था, गॉस जैकोबी में राइट साइड में के ही अप्रोक्सीमेशन था, केथ टर्म था. इसमें फर्स्ट तो ठीक है, सेकंड में जो x2 है, x1 वेरिएबल तो k प्लस 1 हो जाएगा और x3 k ही रहेगा. मतलब x2 से पहले वाले वेरिएबल जो हैं वो तो k प्लस 1 हो जाएंगे और x2 के बाद वाले k रहेंगे. x3 लिया हमने तो x3 से पहले वाले वेरिएबल x1 और x2 k प्लस 1 पावर लेंगे और इससे आगे तो है ही नहीं. अगर x4 होता तो उसी तरह से उसे एक्सटेंड कर देते हैं. ओके, तो ये वाला पॉइंट दोबारा बता दीजिए एक बार. अगर हम उसकी बात करें, ये जो है पावर्स का ही सारा है इसमें. यहाँ पे आप देख रहे हैं k प्लस 1 k और k. गॉस सीडल में भी सॉरी गॉस जैकोबी में भी ऐसे ही था. लेफ्ट में पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, फर्स्ट वेरिएबल ले लिया मैंने, बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड में ले गया और जो लेफ्ट में वेरिएबल है वो k प्लस 1 अप्रोक्सीमेशन देगा और राइट साइड वाले k. बट जब दूसरे वेरिएबल की मैं बात करूंगा k2 की, सॉरी x2 की, तो x2 से पहले वाला वेरिएबल क्या है, x1 है, तो उसका तो पावर जो है k प्लस 1 रहेगा और x3 का पावर k हो जाएगा. वहां पर क्या होता है, गॉस जैकोबी में राइट साइड में यहाँ पर भी k ही था, x1 का भी पावर k ही था अगर आपको याद हो. x3 k प्लस 1 में x3 से पहले वाले वेरिएबल क्या है, x1 और x2, उन दोनों का पावर क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा. ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. इन दोनों मेथड्स में बस यही डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है. ओके, ओके सर. जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होंगी. ठीक है, it says solve the system of equation solve the system of equation 27x plus 6y minus
z is equal to 85, okay, 6x1 6x plus 15 y plus 2 z is equal to 72 and x plus y plus 54 z is equal to 110. Okay. Solve the system of equation by Gauss-Seidel iterative method. Gauss-Seidel iterative method. Take the initial approximation as x0 0 y0 0 and z0 as 0. Perform 3 iterations. ओके, तो इसका इटरेटिव फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे पहले. द इटरेटिव फॉर्मूला इज व्हाट इट विल बी. क्या हो जाएगा? x k plus 1 is equal to 1 by 27, 85 minus 6x2 6yk प्लस zk. यहाँ पे क्या करा मैंने, माइनस जो था वो नहीं लिया, माइनस अंदर लिख दिया, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, y k plus 1 हो जाएगा 1 by 15 72 minus 6 x k plus 1 minus 2 z k और z k plus 1 will be 1 by 54 110 minus x k plus 1 minus y k plus 1. ओके, तो ये आपका इटरेटिव फॉर्मूला आ गया. और अब अप्रोक्सीमेशन, जैसे हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए, हाँ जी, कोई डाउट इसमें किसी को? यस, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में, नो सर. फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में k0 ले लिया, तो x1 ये हो जाएगा 1 by 27, 85 minus 6y0 प्लस z0 और ये आ जाएगा 1 by 27, 85 minus 0 plus 0 and that will be 3.15. ओके, y1 आ जाएगा आपका 1 by 15 72 minus 6 x1 minus 2 z0. तो 72 minus 6 x1 है आपका 3.15 और माइनस 2 इंटू 0. ये वाला पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया. ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा है, x1 का यूज करा है, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3.54. इसी तरह z1 जो है, z1 आ जाएगा आपका 1 by 54
110 minus x1 minus y1. तो 1/54 110 minus x1 is 3.15 minus 3.54 and it will be 1.91. ओके, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बाद जो आपकी वैल्यूज आई हैं, x1 आ गया 3.15, y1 आ गया 3.54 और z1 आ गया 1.91. इसी तरह सेकंड अप्रोक्सीमेशन या सेकंड इटरेशन, वो मैं आंसर लिख देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो आप लोग खुद कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा. सो दैट विल बी x1 x2 आ जाएगा आपका 2.43, y2 आ जाएगा 3.57 और z2 आ जाएगा 1.926 और थर्ड इटरेशन जो है उसमें x3 आ जाएगा 2.426, y3 आ जाएगा 3.572 और z3 आ जाएगा 1.926. ओके, तो ये जो है आप चेक कर लीजिएगा अपने आप, चेक योर सेल्फ. ओके, तो इस वाले पार्ट को प्लीज आप चेक कर लेंगे. So this way we can solve the system of equation using Gauss-Seidel method. Okay. So कहीं का कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन, they can ask. Otherwise you can drop your name for attendance and you can leave. Okay, one more thing. Can I take class tomorrow at 1:30? Yes. So we have class. You have a class. Is it a tutorial or what does it? The I think e-filing की it's practical class है. okay. So 12:30 से स्टार्ट होती है वो? Yes sir, 12:30 से, मतलब कि सर 12 से 2 है कॉलेज में. 12 से 2 है. ओके, तो ऑनलाइन ही होगी वो?